Assalamu alaikum students, how are you? I am Bushra Imtiaz, BBA 4. Today we are having lecture number 7 and the topic of discussion for today is Sir Sayyid's idea. This is actually the Sir Sayyid's idea of two-nation theory. So Sir Sayyid Ahmad Khan, as he was educator and politician, and he was the advocacy of he is called the advocacy of the two nation theory. He was the first person in the subcontinent who used the term two nation theory for the Muslims and Hindu in the subcontinent. Come to the introduction of Sir Sayyid Ahmad Khan. We take from here. Sir Sayyid Ahmad Khan, he born 17th of October 1817 and died 27th of March 1898. He was actually a teacher, politician, he was a philosopher as well. And he was also a social reformer. He did many things. He did a lot for the betterment, for the welfare of the Muslims of the subcontinent. He founded the school that would later become the Aligarh Muslim University in 1920, but unfortunately after his death. Sir Sayyid born into a family with strong Mughal connection. Their family, they were having the strong connection with the Mughal Empire, and he received the conventional education, but he was a pioneer in introducing the modern education for the Indian Muslim community, because Sir Sayyid was the person who focused over to that Muslims should get the modern and scientific education साइड बाय साइड विद द हिंदूज़, क्योंकि हिंदूज़ तो बहुत आगे जा रहे थे मुसलमानों से, वो अंग्रेज़ों के साथ मिल चुके हुए थे और उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ मिलकर जो है वो सब कुछ वही कुछ अपना लिया हुआ था, और मुसलमान देवर फार अवे, बहुत पीछे थे उनसे वो मुसलमान तालीमी मैदान में. इस वजह से सर सैयद का ये था कि वो उन्होंने जो है वो ही एक्चुअली इंट्रोड्यूस द मॉडर्न एजुकेशन फॉर द मुस्लिम कम्युनिटी इन द सब कॉन्टिनेंट. ही हैड अ कीन इंटरेस्ट in the literature, and after the death of his father, Sir Sayyid joined the East India Company. This East India Company, a company which came in the subcontinent for the trade purpose, and he joined East India Company as a clerk, but gradually got promoted to become the judge of the small court. But फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आगे जो है वो उनकी प्रमोशन जो है वो होती रही. Now come to the role of Sir Sayyid Ahmad Khan during 1857 war. Actually, the War of Independence is an important landmark in the history of the subcontinent. And this war was fought in 1857 by Indians against the British in order to get rid of their domination. In 1857, there was a rebellion in India, and this is known as the first Indian War of Independence. ये जंगे आज़ादी जो है वो पहली हुई. और क्या चीज़ है इसमें, in this Indians, this was fought by the Indians, in which Muslim and Hindus both were involved. And why they fought in this against the British, just because that to get rid of their domination, बड़े सगीर में से अंग्रेज़ों को निकालना चाहते थे इस वजह से. And this is also given the name of an Indian rebellion, जो मैंने अभी यहाँ पर आपको बताया ना, इस वॉर को जो है वो क्या है, इंडियन रिबेलियन भी जो है वो कहा जाता है, कि ये एक बगावत जो है का नाम जो है वो इसको जो है वो दिया गया. Indian
म्यूटनी एज वेल एज इंडियन रिवॉल्ट, कोई भी इनमें से नाम जो है वो इसमें जो है वो दिया जो है वो जा सकता है. The main cause of the war, they were political, social, economical, military and religious. These are the main reasons for this war, and it was an extreme effort made by the Indian, but they failed due to the certain reason, including mutual jealousy, disunity and lack of central leadership. और इसमें जो है वो उन्हें कामयाबी जो है वो नहीं हुई. तो during this war, during this time of war of independence, Sir Syed kept loyal to the British. उनके साथ जो है वो उन्होंने अपनी वफादारी शो की, और उसके पीछे भी बहुत सारी वजूहात थी. He also saved many European lives, and after the rebellion he wrote a book, Causes of Indian Revolt, where he explained to the Britishers that the British were in fact those who caused the rebellion. कि सिर्फ इसमें जो ब्रिटिशर्स जो इल्ज़ाम दे रहे हैं मुसलमानों पर, और हिंदू भी उनके साथ शामिल हो चुके हैं कि ये मुसलमान ही इस सारी जंग के जो है वो ज़िम्मेदार थे, वो सर सैयद ने इस अपनी बुक में जो है वो ये चीज़ क्लियर की कि मुसलमान दे वर नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबल एंड दे वर नॉट ओनली इन्वॉल्व इन दिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, बल्कि क्या चीज़ है कि द हिंदूज वर ऑल्सो इन्वॉल्व एंड द ब्रिटिशर्स आर द ब्रिटिश, they were also responsible for the cause of the rebellion. And almost 500 copies of this book, they were published and distributed among the member of the British Parliament and other English people, just to explain the position of the Muslim. And he asked, Sir Syed Ahmad Khan, he asked to the British government to change their attitude or their behavior towards the Muslim, a hostile attitude towards the Muslim. मुसलमानों के अगेंस्ट जो इतना जारहाना रवैया जो है वो उन्होंने इख्तियार किया हुआ था, वो जो है वो ख़त्म किया. और सर सैयद अहमद ख़ान की इस बुक की वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा जिसको जो है वो इस ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है वो अपना रवैया जो है वो चेंज किया, और मुसलमानों को जो है वो इस चीज़ में से जो उनकी इतनी मिजरेबल कंडीशन होती चली जा रही थी उसमें से जो है वो निकाला. Here are some books for the Sir Syed Ahmad Khan in this effort for the to present the idea of two nation theory. He wrote many books. First of all, Sir Syed Ahmad Khan wrote many books: Asarus Sanadid, Aine Akbari, Khutbat Ahmadiyya, Tabayyin al-Kalam, Tafsir Quran Pak, Causes of Indian Revolt, Tuzke Jahangiri. These all books, these were written by the Sir Syed Ahmad Khan, but some of the important are here. He wrote the Loyal Mohammedans of India to prove that the Muslims were not disloyal to the British, and to ask the British to end their hostility towards the Muslim, को ख़त्म करें मुसलमानों के साथ कि वो मुसलमान जो हैं वो अंग्रेज़ों के साथ वफ़ादार हैं. ये इन्होंने एक्सप्लेन किया. Wrote a pamphlet essay on the causes of the Indian revolt, as I have already explained कि इसमें क्या था. He pointed out the reasons for the outbreak of 1857 war, and this pamphlet was circulated for the free amongst the British officials, as I have already explained this thing कि 500 कापियाँ जो हैं वो इसकी जो है वो पब्लिश करवाई गई, और मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट और दूसरे इंग्लिश लोगों में जो है वो तकसीम जो है वो की गई. He also wrote Tabayyin al-Kalam to point out the similarities between Islam and Christianity, कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी जो है कि ये कहना कि इस्लाम जो है वो बिल्कुल ही फ़र्क जो है, और क्रिश्चियनिटी जो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इनके आपस में मिलती हैं. तो ये कहना कि मुसलमान जो है वो इसको नहीं मानते, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो जिनको मुसलमान जो है वो मानते भी हैं. Established the British Indian Association for the protection of the Muslim right in the subcontinent. ये जो British Indian Association, this was actually formed by Sir Syed Ahmad Khan, and through this British Indian Association they decided to cooperate with the British government, with the local people. और क्या चीज़ है कि इससे क्या होगा
कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो मुसलमानों के साथ अपने ताल्लुकात जो है वो बेहतर उनके जो है वो बनेंगे. एंड द प्रेसिडेंट ऑफ दिस ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन वाज वन हिंदू राजा जे किशन दास, एंड सर सैयद अहमद खान वाज द सेक्रेटरी ऑफ दिस ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन. Here are some educational efforts by Sir Syed Ahmad Khan for the Muslims of the subcontinent. वैसे तो बच्चे इसमें ये क्या चीज़ है कि सर सैयद अहमद ख़ान ने मुसलमानों के लिए उनको सबसे पहली चीज़ जिस चीज़ पे सर सैयद अहमद ख़ान ने मुसलमानों को फोकस करने के लिए कहा, दैट वाज एजुकेशन, बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम ओनली दिस एजुकेशन इज़ ओनली द way through which the Muslims can get back their previous status, their previous position, and only the modern education, and he focused over the importance of the modern scientific education. And in this regard, in this connection, he actually translated many Urdu book into English and many English book into Urdu as well. And एक और चीज़ जो है वो कि ही हायर्ड द ब्रिटिश टीचर्स इन हिज डिफरेंट स्कूल्स, ताकि मुसलमान जो है वो अंग्रेज़ी की तालीम हासिल करें और मुसलमान जो है वो हर लिहाज से तालीमी मैदान में आगे जो है वो आते जाएं. और इसमें जो है वो सर सैयद अहमद ख़ान जो है वो मॉडर्न सिलेबस जो है वो इन्होंने इंट्रोड्यूस जो है वो इसमें जो है वो करवाया. बट इट डजंट मीन कि इस मॉडर्न एजुकेशन के साथ जो है वो इस्लामी तालीम जो है स्पेशली इस्लामिक एजुकेशन वाज आल्सो रिमेंस देयर साइड बाय साइड विद दिस साइंटिफिक एजुकेशन. इस्लामियात की तालीम जो है वो साथ साथ जो है वो चलती रही, मशरक़ी उलूम की तालीम जो है वो साथ साथ जो है वो चलती रही. सो हियर आर सम एफर्ट्स देखते हैं. सर सैयद प्ले अ वाइटल रोल इन द एजुकेशनल अपलिफ्ट ऑफ द मुस्लिम इन द इंडिया, एंड दीज आर द फॉलोइंग थिंग्स. कौन कौन से जो है उसमें जो है सेट अप अ जर्नल तहज़ीबुल अखलाक which contain the articles of influential Muslims who agreed with Sir Sayyid's approach toward the एजुकेशन. जो तहज़ीबुल अखलाक लिखा, इसमें ये जो एक रसाला जो है वो उन्होंने लिखा, जिसमें कि उन्होंने क्या चीज़ है कि इस रसाले में उन्होंने मुसलमानों को तालीम के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो उस पर जो है वो फोकस किया. फाउंडेड साइंटिफिक सोसाइटी इन गाज़ीपुर इन 1863. साइंटिफिक सोसाइटी जो है वो बनाई, क्योंकि सर सैयद अहमद ख़ान चाहते थे कि मुसलमान कैन गेट द मॉडर्न एजुकेशन सून, जल्द अज जल्द तालीम जो है वो हासिल करें. तो इंस्टीट्यूशन वाज फॉर्म नेम साइंटिफिक सोसाइटी इन गाज़ीपुर इन 1863, एंड इन दिस साइंटिफिक सोसाइटी, ये जो एक इदारा जो है वो सोसाइटी इन्होंने जो है वो बनाई, इसमें क्या चीज़ है, ही ट्रांसलेटेड मैनी यूरोपियन बुक्स इनटू उर्दू, और बहुत ज़्यादा मुसलमानों को इससे जो है वो फ़ायदा जो है वो हुआ. और जो क्या चीज़ है, एंड वन जिसको कहते हैं मैगज़ीन वाज आल्सो पब्लिश एट दैट टाइम अंडर द साइंटिफिक सोसाइटी. इसी के बीच में जो है वो एक मैगज़ीन भी जो है वो वीकली जो है वो करते थे, जिसमें कि जो वो प्रेजेंटेड द condition of the Muslim and their activities of the Muslim. He opened school in Muradabad in 1859. मुरादाबाद में जो है वो 1859 में सर सैयद अहमद ख़ान ने जो है वो स्कूल जो है वो खोला. 1875 में अलीगढ़ में तालीमी इदारे जो है उनका आगाज़ किया, और ये सब तालीमी इदारे सर सैयद अहमद ख़ान जो है वो ताकि मुसलमान जो है वो तालीम हासिल जो है वो कर सकें. सम पॉलिटिकल सर्विसेज ऑफ सर सैयद अहमद ख़ान. अच्छा, शुरू में जो है वो क्या चीज़ है इसमें कि सर सैयद फोकस ओनली ओवर द एजुकेशन फॉर द मुस्लिम, एंड ही एडवाइज्ड मुस्लिम नॉट टू ज्वाइन पॉलिटिक्स. दिस वाई ही फोकस ओनली ओवर द एजुकेशन, ताकि वो, क्योंकि वो ये चाहते थे कि अगर मुसलमान सियासत में आ जाएंगे या सियासत में पढ़ेंगे या पॉलिटिक्स में जो है वो आ जाएंगे, तो उसका क्या, उसमें क्या है कि अंग्रेज़ों को जो उनकी वफ़ादारियों का यकीन जो है वो दिलाया गया है, वो एक बार फिर से कहीं जो है वो उसमें उनका रवैया जो है मुसलमानों से बदल ना जाए. द फर्स्ट वन थिंग. और दूसरी चीज़ जो है वो क्या है कि वो सर सैयद अहमद ख़ान, ही वांटेड द मुस्लिम कैन गेट द साइंटिफिक एजुकेशन सो दैट दे कैन
they can fight with the Hindus and the Britishers as well, and they can get back their previous position. They could have their jobs as well, जो कि उनसे सारी उनकी जॉब्स जो है वो छीन ली गई थी, वो सारी जो है वो वापस आ सकें। तो सर सैयद ने सबसे पहले कोशिश ही यही की बच्चे के मुसलमानों को है जो है वो जदीद तालीम दी जाए। बट लेटर देर वॉज़ अ नीड एक्चुअली, अगर हम यहाँ पर ये कहें तो वो ज़्यादा है कि देर वॉज़ एक्चुअली अ नीड लेटर कि मुस्लिम शुड हैव पार्टिसिपेशन इन द पॉलिटिक्स एज वेल, एंड दे शुड हैव देयर सेपरेट रिप्रेजेंटेशन। और उसमें जो है वो सेपरेट इलेक्टोरेट की जो डिमांड थी और भी बहुत सारी उसमें जो है वो चीज़ें जो हैं वो आई। एंड दिस एंड एक्चुअली सर सैयद वॉज अ पर्सन who effort for to create the political awareness in the Muslims as well। क्या है, he also increased the political awareness of the Muslims in the subcontinent। At first he believed in Hindu Muslim unity। शुरू में सर सैयद अहमद ख़ान ने बच्चे जो है वो क्या चीज़ है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं की बिटवीन हिंदूज़ एंड मुस्लिम। द हिंदूज़ दे वर ऑल्सो हैविंग द एडमिशन इन द डिफरेंट स्कूल ऑफ सर सैयद अहमद ख़ान। और सर सैयद अहमद ख़ान ने हिंदू और मुसलमानों को जो है उनमें कोई किसी किस्म का फ़र्क जो है वो नहीं रखा, और इसको हिंदू मुस्लिम यूनिटी। और सर सैयद बहुत ज़्यादा जो है वो क्या कहते हैं सपोर्टर थे हिंदू मुस्लिम यूनिटी के। बट लेटर व्हेन इन बनारस इन 1867 व्हेन द उर्दू हिंदी कॉन्फ्लिक्ट स्टार्टेड बिटवीन द हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स, और जिसमें कि उन्होंने हिंदुओं ने डिमांड की कि हिंदी शुड बी द ऑफिशियल लैंग्वेज। एट दैट टाइम सर सैयद रियलाइज दिस थिंग कि दिस इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स दैट दे कुड लिव टुगेदर इन द फ्यूचर। और इस वजह से फिर वो जो है उसमें ख़त्म कर दिया उन्होंने अपने इस हिंदू मुस्लिम यूनिटी के जो इत्तेहाद जो उसमें था, इसके वो सपोर्टर थे, उन्होंने इस चीज़ को ख़त्म किया। इवन कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी यहाँ पर ये भी है कि मैंने आपको एक प्रीवियस अपने लेक्चर में भी ये चीज़ जो है वो बताई थी। सर सैयद कॉल्ड हिंदू एंड मुस्लिम्स आर टू ब्यूटिफुल आइज़ ऑफ अ ब्राइड। इस तरह से वो इन सब कॉन्टिनेंट इस तरह से वो एग्ज़ाम्पल जो है वो देते थे कि हिंदू और मुसलमान बरे सगीर में एक दुल्हन की दो खूबसूरत आँखें हैं। लेकिन बाद में जो है वो उनको ही रिजॉल्व टू द टू नेशन थ्योरी, बट लेटर रिजॉल्व टू द टू नेशन थ्योरी। बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, हिंदू एंड मुस्लिम आर टू सेपरेट नेशन फ्रॉम ईच अदर बाय एनी एस्पेक्ट। हर लिहाज से जो है वो फ़र्क हैं इनमें आपस में जो है वो कि इनके दो दे आर लिविंग टुगेदर सिंस सेंचुरीज इन द सब कॉन्टिनेंट, लेकिन देयर हर चीज़ देयर रिलीजन, देयर philosophy of life, their culture, tradition, everything is different from Hindus. And in 1885, when the Indian National Congress was the first political party in the subcontinent, पहली सियासी जमात जो है वो बनाई गई थी। इट क्लेम टू बी द बॉडी ऑफ एवरी इंडियन रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन। हालांकि जब ये बनी थी तो इन्होंने यही कहा था कि दिस इज़ अ पॉलिटिकल पार्टी फॉर एवरीवन, Hindu, Muslim, everyone can join it. And Sir Sayyid was also invited to join this party, लेकिन he refused to join this party क्योंकि he knew this thing कि later it could only become the हिंदू मेजॉरिटी पार्टी। और ये हुआ भी कि बाद में वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो हिंदुओं की ही जमात जो है वो रही, क्योंकि इन 1906 मुस्लिम फॉर्म द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, the separate political party for the Muslims. However, it later proved by वो जो मैंने अभी आपको बताया, proved to be functioning only for the Hindus and try to eradicate the Muslim। बाद में ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं की जमात। अच्छा, इस पॉलिटिकल पार्टी में जो है वो कांग्रेस में 3 डिमांड्स, इसने 3 डिमांड्स जो हैं वो की टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। व्हाट वर दीज 3 डिमांड्स? द फर्स्ट वन इज़ पोलिटिकल रिप्रेजेंटेशन अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन। बस ज़ाहिर देखा जाए तो ये बड़ा एक आइडिया उन्होंने जो है वो दिया कि इन सब कॉन्टिनेंट देयर शुड बी पोलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अकॉर्डिंग टू द population. It is actually the introduction of the parliamentary system
इन द सब कॉन्टिनेंट। देखा जाए तो ये उन्होंने जो है वो डिमांड जो है वो सिर्फ और सिर्फ की थी कि एक पार्लियामेंट्री सेटअप शुड बी इंट्रोड्यूस इन द सब कॉन्टिनेंट, लेकिन ये दिस वाज एक्चुअली अ डिमांड कि जिसका मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ नुकसान हो सकता था। वो क्यों? क्योंकि मुस्लिम्स वर इन माइनॉरिटी। दिस इज़ व्हाट इज़ द अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। ये देखें यहाँ पर है ना, आबादी के लिहाज से जो है रिप्रेजेंटेशन, और अगर आबादी के लिहाज से रिप्रेजेंटेशन दी जाती तो मुस्लिम्स वर इन माइनॉरिटी, तो उनकी तो रिप्रेजेंटेशन होनी ही नहीं थी। दैट इज़ वाई मुस्लिम डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोरेट, जो मैंने पहले बताया कि इसी वजह से मुसलमानों ने सेपरेट इलेक्टोरेट का मुतालबा जो है वो किया, और ये बाद में उनका सेपरेट इलेक्टोरेट का जो डिमांड था वाज एक्सेप्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब उसमें ये क्या है, ये जो इसने कहा, दिस ऑब्वियसली मेंट द हिंदू डोमिनेशन as they were a dominant majority in India, and सर सैयद totally opposed it। उन्होंने बिल्कुल इसकी जो है वो मुखालफत जो है वो की, क्योंकि and he said that subcontinent is not a country, ये एक मुल्क नहीं है, and nor the one nation is living here, और ना ही यहाँ पर एक कौम जो है वो यहाँ पर जो है वो रह रही है। देयर आर डिफरेंट नेशन इन विच हिंदू एंड मुस्लिम्स आर ऑल्सो लिविंग एंड प्रोमिनेंट वन, एंड दे आर टोटली डिफरेंट फ्राम ईच अदर। सर सैयद ने इस मुतालबे की बिल्कुल मुखालफत जो है वो की, और क्या हुआ कि उनकी इसी बहुत पुरजोर मुखालफत को भी समझते हुए जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है वो ये डिड नॉट इंट्रोड्यूस दिस पार्लियामेंट्री सिस्टम इन सब कॉन्टिनेंट। द सेकेंड वन डिमांड, अपॉइंटमेंट इन द गवर्नमेंट शुड बी बाय द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। अब ये एक दूसरी एक चीज़ जो थी, बिकॉज मुस्लिम्स वर नॉट हैविंग द मॉडर्न एजुकेशन, और ना ही उनके पास इतनी अंग्रेज़ी की तालीम थी और ना ही उनकी इतनी कमांड थी। तो एक और हिंदू जो है वो तालीमी मैदान में बहुत आगे जो है वो जा रहे थे। तो डिमांड अगेन देखा जाए तो वो क्या है कि बड़ी उन्होंने अब एक अट्रैक्टिव डिमांड जो है वो दी कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन शुड बी कंडक्टेड इन द सब कॉन्टिनेंट, ताकि की पोस्ट जो है वो उनके लिए जो है वो हो। लेकिन क्या चीज़ है कि सर सैयद अहमद ख़ान अगेन अपोज्ड इट, बिकॉज ही न्यू that the educational standard of the Hindu was much better than the Muslim। मुसलमानों के पास तो उस तरह की तालीम ही नहीं थी। इसी वजह से सर सैयद जो है वो कह रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा तालीम जो है वो हासिल करें। ही अगेन अपोज्ड इट, और उन्होंने इसको जो है वो अलग जो है इसको अपोज किया, एंड ही डिमांडेड द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू फिक्स द कोटा फॉर द की पोस्ट, कि वो मुलाजमतों में फॉर द मुस्लिम्स, मुलाजमतों में मुसलमानों के लिए जो है वो कोटा फिक्स कर दें, जिसके अकॉर्डिंगली इंस्टेड ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। एंड द थर्ड वन डिमांड, ऑफिशियल लैंग्वेज शुड बी हिंदी रिप्लेसिंग द उर्दू। इन 1867, मैंने अभी आपको यहाँ बताया एक बात, इन 1867 इन बनारस अ कॉन्फ्लिक्ट वॉज started between Hindu and Muslim, and that was Urdu Hindi conflict, that Hindu wanted that the Hindi should be the official language, क्योंकि उर्दू ज़बान जो है वो सरकारी ज़बान के तौर पर इस्तेमाल जो है वो हो रही थी। और ये दिस इज़ जस्ट द नैरो माइंडनेस ऑफ द हिंदूज़, के वो चाहते थे कि उर्दू ज़बान को रिप्लेस किया जाए हिंदी के साथ। क्या उसमें जो है हिंदी शुड बी द ऑफिशियल लैंग्वेज। लेकिन और इसी चीज़ से जो है वो सर सैयद अहमद ख़ान ने जो है वो क्या चीज़ है, उनको इस चीज़ का अंदाज़ा जो है वो हो गया कि हिंदू और मुसलमान कभी भी जो है वो इकट्ठे जो है वो नहीं जो है वो रह सके। ही वॉज़ वेरी सैड ऑफ दिस कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हुआ, और एंड अकॉर्डिंग टू हिज पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर हिंदू इतनी सी बात भी जो है बर्दाश्त नहीं कर सकते, देन इन फ्यूचर दीज टू नेशन कुड नेवर लिव टुगेदर, कभी भी मुस्तकबिल में ये जो है वो साथ जो है वो नहीं रह सकते। बिकॉज उर्दू हैड अ स्पेशल प्लेस इन द मुस्लिम्स हार्ट, एंड सर सैयद अपोज्ड इट। लेकिन सर सैयद ने इसको बहुत अपोज किया, बट डिस्पाइट ऑफ दिस डिमांड वाज एक्सेप्टेड बाय द ब्रिटिश, और हिंदी को जो है वो उन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो करार जो है वो दे दिया। सो दिस इज़ द
very important, the idea of two nation theory that was given by Sir Syed Ahmad Khan, because Sir Syed was the first who used the term two nation theory. पहली बार सर सैयद ने बर सगीर में सबसे पहले शख्सियत थे कि यूज़ द term of two nation theory for the Muslim and Hindu. And according to him, in subcontinent there are two nations, Muslim and Hindu, and both are different from each other by any aspect, because their culture, values, language, custom and traditions and the philosophy of life is separate from the Hindus. और मुसलमान जो हैं वो क्या है, आर हैविंग द एक्सक्लूसिव एंड सेपरेट आइडेंटिटी ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन इस्लाम. बिल्कुल ही मुसलमान जो हैं वो अलग हैं हिंदुओं से बाय एनी एस्पेक्ट. और ये जो टू नेशन थेरी का, इसी टू नेशन थेरी के अंडर जो है रहते हुए इन 1940 मुस्लिम डिमांडेड इन लाहौर रेजोल्यूशन, पाकिस्तान रेजोल्यूशन भी जिसको जो है वो कहा जाता है, in 1940 they demanded a separate nation, a separate country, and right after the 7 year they were having a separate independent, they got a separate independent country on 14th of August 1947. उन्होंने अलग वतन जो है मुसलमानों ने जो है वो हासिल कर लिया. और सर सैयद अहमद ख़ान जो हैं वो एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने इसकी बुनियाद जो है वो रखी थी, और इस नज़रिए की बुनियाद जो है वो उन्होंने ही रखी थी, और वही जो है वो इसके जो है वो फाउंडर जो है वो कहलाते हैं. So come to the conclusion. Sir Syed Ahmad Khan, he played a vital role in improving the Muslim status in the subcontinent, in different department, in different fields. We can say in educational field, in the political field, and in social and the religious aspect as well. क्योंकि सर सैयद wrote many books as well. उनकी लिटरेरी सर्विसेज जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा थी कि उन्होंने बहुत सारी किताबें भी जो हैं वो उन्होंने जो है वो लिखी, और ये सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए था ताकि वो जो है वो मुसलमानों को अलग शनाख्त जो है वो उनकी जो है वो दे सके. और इसके साथ साथ इकनॉमिकली, सोशली भी उनकी बहुत सारी खिदमत जो है वो उन्होंने जो है वो की. और यहीं पर क्या चीज़ है, ही वर्क टायरलेसली टू रिस्टोर द रिलेशंस बिटवीन द मुस्लिम्स एंड द ब्रिटिश. He brought the Muslim revival through the Aligarh movement and showed the importance of the education. He brought an idea about the two nation theory and is hence known as the father of the Pakistan movement. और यही जो है वो तहरीक पाकिस्तान के जो है वो फाउंडर जो है वो कहलाए, और उन्होंने ही जो है वो आखिरकार जो है वो कायद आज़म की लीडरशिप में मुसलमानों ने एक अलग वतन जो है वो हासिल जो है वो कर लिया. सो दिस इज़ ओवर फॉर टुडे. आज के लिए जो है वो हमारा ये लेक्चर जो है, होप यू अंडरस्टैंड गर्ल्स. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल इंशाल्लाह डिस्कस अबाउट द वॉर ऑफ 1857. सो टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ. अल्लाह हाफिज़ and thank you.